आपको यूडीसी के क्वेश्चंस कराने आई हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचे थे वो कराने आई हूँ। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ f of e is Fermi Dirac distribution function then 1 minus f of e is the probability। देखिए ये ऑप्शंस है। पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज f of e। The probability that an electron occupies the probability that an electron occupies the energy level E, okay, by the Fermi Dirac probability function क्या होता है? It is f of E is equal to 1 by 1 plus e to the power e minus ef by kt. What is this? This is the probability that an electron occupies an energy level E. It is given by this Fermi Dirac distribution function. Okay, the probability that energy field is not filled with an electron, उसको हम कहते हैं that is जो empty state रह जाती है उसको हम बोलते हैं 1 minus f of E, right? That means 1 minus 1 by 1 plus e to the power e minus ef by kt, right? अब यहाँ पे अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 minus f of e is equal to 1 by 1 plus e to the power minus of e minus ef by kt ये होता है, ठीक है। तो एन एनर्जी स्टेट बीइंग एम्प्टी, कोई भी एनर्जी स्टेट जो हो, एन एनर्जी स्टेट बीइंग एम्प्टी इज इक्विवेलेंट टू द प्रेजेंस ऑफ ए होल, ठीक है, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन आएगा कि इफ क्या बोला है इसने कि इफ f of e is the Fermi Dirac distribution then the 1 minus f is the probability, इसका मतलब होता है that the state is empty below ef, right? तो ये आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्टर टू एमीटर कट ऑफ करंट IC ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज रिलेटेड टू ICVO एज, देखिए ये ऑप्शन होता है, ये फॉर्मूला होता है ICVO इज इक्वल टू ICVO बाय 1 माइनस अल्फा। कैसे? देखिए आपको मालूम है कि IE इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, राइट? IC की वैल्यू क्या होती है? अल्फा ऑफ IE प्लस ICVO, ठीक है। ये क्या होती है? माइनॉरिटी करंट होती है और ये क्या होती है? मेजॉरिटी करंट होती है। अब अल्फा IE की वैल्यू रखिए IB प्लस IC प्लस ऑफ ICVO। अब यहाँ पे आप देखिए ये IC था तो IC ऑफ 1 माइनस अल्फा एंड दिस इज अल्फा IB प्लस ICVO, ठीक है। तो फॉर IB is equal to 0, okay, IC is equal to ICEO, ठीक है, IC is equal to ICEO। तो यहाँ पे ICEO into 1 minus alpha is equal to ICVO, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ICEO की वैल्यू क्या हो गई? ICVO by 1 minus alpha। तो ये आपका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which of the following parameters are affected due to short channel MOSFET geometry? Mobility of the carriers, threshold voltage और drain current। देखिए short channel effect क्या होता है? If the channel length of a MOSFET, if channel length, this is your channel length, if the channel length of MOSFET becomes comparatively equal to the depletion layer widths of source and drain junction, right? अगर MOSFET की जो चैनल लेंथ है it becomes equal to the width of the depletion layer of source and drain junction, then it is called that MOSFET suffers from short channel effect। तो इसको हम बोलते हैं short channel effects। Like due to this effect following parameters are affected: mobility of charge carriers in the channel, ये भी इफेक्ट होता है, threshold voltage changed due to shorter channel length,
shorter length of the channel, and drain current is also changed as, ये भी change हो जाता है, drain current is also changed as VT changes, as VT is changed. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर ड्यू टू डूपिंग द एमीटर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होती है ये, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा. Emitter conductivity is 10 times the base conductivity. Electron diffusion length is in a more heavily doped emitter is half the whole diffusion length. ओके, ये गिवन थिंग्स हैं. द बेस विड्थ जो आपको दी है, इट इज 1/10 ऑफ द होल डिफ्यूजन लेंथ इन द बेस, एंड ए एंड बी ऑफ द ट्रांजिस्टर आर सी. द करंट गेन जो आपको बीटा दिया है ऑफ ट्रांजिस्टर, इट इज गिवन एज DE by DB इंटू NE by NB इंटू LE by WB. पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, DE by DB इंटू NE by NB इंटू LE by WB. DE क्या है आपका, DE is the diffusion constant of minority carriers, diffusion constant of minority carriers in emitter, right. DB क्या है आपका, DB is the diffusion constant of minority carriers CTs in base. CT मतलब carrier. NE क्या है, emitter doping concentration, emitter doping concentration, and NB क्या है, base doping concentration. LE क्या है आपका, LE is the length of diffusion of minority carriers in emitter. WB बेस विड्थ है. अब आप इसमें देखिए DE by DB, जो आपका DE by DB है, दैट मीन्स द रेशियो ऑफ द डिफ्यूजन कांस्टेंट ऑफ emitter, ratio of diffusion constant of minority carriers in emitter to the diffusion constant of minority carriers in base. ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 2.1 फॉर सिलिकॉन एंड 2.6 फॉर जर्मेनियम. ठीक है, जो आपका एमीटर टू बेस डूपिंग कंसंट्रेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी फ्रॉम एमीटर टू बेस, ये 10, ये गिवन है एक्चुअली. LEN minority carriers in emitter जो आपको दिया है, LEN, this is equal to LBP by 2, whole diffusion length in base, whole diffusion length in base. ठीक है, अब आप इसमें देखो LEN by WB is equal to, LEN is LBP by 2 by LBP by 10. This is equal to what, 5. ठीक है, क्योंकि इसमें जो है टेकिंग द केस ऑफ सिलिकॉन, अगर हम सिलिकॉन लेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या होगी, DE by DB. अगर हमने सिलिकॉन लिया तो 2.1 हो गया, इनटू जो आपका NE by NB था, ये वाला जो रेशियो था आपका, ये था ना. DE by DB, इसकी वैल्यू क्या है, 2.1 हो गई. सॉरी, NE by NB जो उसमें दिखा है, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन लेंथ इन अ मोर हैवी टू मीटर इज हाफ द होल, ये आपको ऑलरेडी गिवन है. LEN is equal to LBP by 2, half the whole diffusion length, that means LBP है. ठीक है, बेस विड्थ इज 1/10 ऑफ द होल डिफ्यूजन लेंथ. बेस विड्थ जो ये कह रहा है, बेस विड्थ के लिए आपको निकालना पड़ेगा WE. दैट मीन्स ये जो दिया है आपको, ये फैक्टर जो है इसमें आपका LBP by 2 गिवन है ये, और बेस विड्थ इज 1/10 ऑफ द होल डिफ्यूजन लेंथ, यानी कि LBP by 10 दिया है, ये गिवन है. तो यहाँ से ये करने के बाद जब आप ये फॉर्मूला निकालेंगे तो 2.1 इंटू 10 जो कि था आपका NE by NB दिया था. ठीक है, और ये जो आपको दिया है ये गिवन है ना, यस, 10 टाइम्स द बेस कंडक्टिविटी, और ये आपका कितना दिया है, 5 दिया है, ये वाला जो रेशियो था, ये जो लास्ट में था. फॉर्मूला क्या था, DE
बाय डी बी इंटू एन ई बाय एन बी इंटू एल ई बाय डब्ल्यू बी। तो आपको ये जो रेशियो था ये 2.1 दिया था, एन ई बाय एन बी 10 दिया है और ये आपको 5 दिया, राइट। तो ये जो आपका आंसर होगा ये क्या होगा, 105। अब 105 है तो 105 जो अगर आपको दिया है, इसमें पता नहीं क्या क्वेश्चन है ये, ए एंड बी ऑफ ए ट्रांजिस्टर आर। अब जब आपका बीटा निकलेगा तब ए निकलेगा ना, जब आप बीटा निकाल लोगे, ठीक है। ये तो आपका सिलिकॉन था। सिमिलरली आप जर्मेनियम के केस में निकालिए, जर्मेनियम, इसमें आपको क्या निकालना है, ये जो है आपका, ये अल्फा पूछा है, ए एंड बी मतलब ए इज अल्फा एंड बी इज बीटा। तो बीटा तो आपने निकाल लिया इस फॉर्मूले से, डी ई बाय डी बी इंटू एन ई बाय एन बी इंटू एल ई बाय डब्ल्यू बी, ठीक है, ये निकाल लिया आपने। तो जब बीटा, जब इसमें आपका अल्फा की वैल्यू आएगा तो ये बीटा बाय 1 प्लस बीटा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार आप सिलिकॉन का निकाल के देखिए, एक बार जर्मेनियम का निकाल के देखिए, जिसमें डी ई बाई डी बी की वैल्यू एक बार 2.1 रख के देखिए, एक बार 2.6 रख के देखिए यहाँ पे, तब आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही सही आ रहा है। तो ये आपका हो गया। तो 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।